Now recall that we said that for simple sample spaces you can perform counting. सर 1 बज के टाइम ऊपर हो गया. बस मैं इसको जल्दी से कराता हूँ. For simple sample spaces you had counting, and and then you had other sample spaces as well. One of them was countably infinite. Countably infinite sample space. For example, a countably infinite sample space could be this 0, 1, 2, 3, all the way up to infinity. So it's integers. Okay. Okay. And let's just have the positive integers. So let's remove the 0. Okay. Let's remove 0. Let's say we just have these positive integers in our sample space. Okay. The problem here is, what's the size of S? Infinite. If you start counting, right? This is why we said that counting is reserved for simple sample spaces, and simple sample spaces have two properties. They're finite and they're equally likely. So they're finite. If you count, your counting will end. But in infinite sample spaces, counting can never end. So we can't define size by counting. Okay. But we can still define size in another way. So let's look at that trick. But let me do the following. In this sample space, you have elements. You have 1, you have 2, you have 3, you have 4, all the way up to infinity. Let me assign the number. Let me just assign, okay? Let me assign the number 1 to this 1. The second element in your sample space is 2. Let me assign the number 1 over 2 to this element. The third element is 3. Let me assign the number 1 over 4 to this element. 1 over 8 to this element, and so on. Are you with me? I'm just placing numbers between below these elements. Okay. And let me define the size. I'm going to define the size of S. It's not equal to, I'm defining it. So this is a notation for defining these three bars. I'm defining the size of S as the sum of the assigned numbers. Okay, and the sum of these assigned numbers is going to be 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus, I'm going to keep going till infinity. What is this sum going to be?
Quickly, anyone, what's this sum going to be? 1 over 2 of infinity. So you say that this sum is Infinity, going to sir. be infinity. Okay. Okay. So let's say this is 1. Let's say this length is 1. Okay. You add half that length, which is half, and then you add half of that length, then you add half of that length, then half of that, and half of that. Do you really think it's going to go to infinity? Yes, The sir. length is approaches to 2. What you are, yes, yeah, that is correct. What you are adding every time is approaching 0. Is that true? What you are adding Yes, every sir. time is approaching 0, which Yes, means sir. that this sum is going to approach some number. Okay, so infinity is not going to be the answer. Did you guys study? Oh, wait. Did you guys study series before university? Some series, arithmetic series, geometric series, or did you skip that chapter? Sir, पढ़ा हुआ सर. Okay, so you might have heard of geometric series. This one here is a geometric series. Okay, this is a geometric series with starting element of 1 and a ratio of half, which means the next number is which means the series starts with a, the second number is a times r, the third number is a times r multiplied by r square, every next number is multiplied by r, and so on until infinity. As long as r is if the magnitude of r is less than 1, as long as r is between -1 and 1, the geometric series converges, the sum converges to a finite value. If r is outside -1 and 1, then it won't converge. Then the sum will be infinity. Okay, and the sum of a converging geometric series is equal to a over 1 minus r. So a for us was 1 minus r for us was half, and the answer would be 2, and someone gave this answer correctly. Okay, fine. What have we just done? What we've done is, this was the sample space originally. It had infinite elements. We could not count them, so we didn't know how to define the size. We played a trick, and we said we're going to assign a certain number to every element of S. We assigned these numbers, and then we, instead of adding the elements of S themselves, we defined the size as the sum of these assigned numbers. That comes out to be 2. Great. Now let's say you have
any subset. Any subset. Excuse me, sir. ये आसान होने लगी सर ये आप प्लीज दोबारा बता दें. टीचर और भी हैं What do you want me to explain again? Sir, this sum is equal to a divided by minus Oh, I just 1 borrowed. minus r. Okay. So I just borrowed the formula for the sum of a geometric series. Okay. Perhaps you could look at your earlier books, the chapter that you skipped, or sorry. बायो के By okay. So can some of the other guys help them out? The one from that have a medical background. Can the other guys help them out a little bit? And if you don't understand, come in the office hours. Okay? If you don't understand these things, come in the office hours. And we'll go over these things in detail. Don't worry. But right now, let's just borrow this. There is something called a series, a geometric series. It looks like this. You have one element, the next element. The next element is just multiple of the previous one, and you keep multiplying by r again and again and again and again. And if r is between -1 and 1, this sum is going to converge, and the sum is going to be a over 1 minus r. So we just borrowed this from series. Now consider any subset of S. Okay, let's call that subset A. What will be the sum of A? What can you say about the sum of A? The sum of S was 2. What will be the sum of A? Less than 2. Less than 2, exactly. It will be less than equal to 2. Which means if you give me any subset of the sample space S, and if I define size by sum, then sum of A will be less than equal to sum of S, which means I can now define probability, because probability of A would be equal to size of A over size of S. And I have defined size by this sum, which is sum of A over sum of S. And this value is going to be between 0 and 1. For sure, because sum of A cannot be more than 2. So it's going to be less than equal to 1. And this sum is going to be at least 1. Well, no, not really. But the sum is going to be positive. The sum is going to be positive. It can't be negative because all the numbers that I've assigned are positive numbers. Even when it reaches 0, the numbers are still positive numbers. So the answer is going to be 0 and 1. So it is a probability. It classifies as a probability. Okay. So what we've done is we have just used the trick to assign probabilities in sample spaces that were infinitely large. And the trick was to assign numbers. Fake numbers, fake sizes. And you could argue that we could have chosen other sizes as well. What if I had chosen r equals 1 over 3, 1 over 3, 1 over 9, 1 over
1 over 27, and so on. Right? That series would have converged as well, would have given some other probabilities. सर अगर ये कल का कर ले नेक्स्ट टाइम तो बेहतर नहीं होगा? ठीक है, हम यहाँ पे we're going to end over here, but you guys have to answer this one last very simple question. ऑफिस और भी अटेंड करना है. Is S equilikely? Is S equilikely? Can anyone tell me Yes, sir, it is equilikely. how? Consider the event. What is the probability of 1, 2 of getting these two? And what is the probability of, in fact, what is the probability of 1? Sir, 1. No. So this is your set A, okay? This 1 is your set A. What is the sum of this set? What number did you assign to 1? 1. So the sum of this set is 1, and what is the sum of your sample space? 2. So the answer is half. What is the probability of 2? So your set A is this set which contains a 2. What is the sum of the numbers assigned to this set? 3/2. No, what is the sum of the, I'm not asking about the probability. What is the sum of the numbers assigned to this set? 1/2. 1/2, great. 1/2. And what is the size of the sample space? Oh, what is the sum assigned to the sample space? 2. 2. So the answer is 1 over 4. Okay. Now, this element of the sample space, 1, has the probability half. And the other element of the sample space, 2, that has probability 1 over 4. And similarly, all these other elements have different probabilities, decreasing. So, no, it's not equilikely. Okay, so I hope you appreciate that the probability that we're studying right now is not your traditional 3 apples and 4 oranges in a box probability. It's a little more advanced. Okay. With this we can end. With this we can end, and I can. सर दोबारा बता दें कि probability of 1/2 किस तरह है? Okay. So हमने ये देखा था कि हम कहते हैं कि कोई भी A सबसेट S का, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से होगी कि साइज ऑफ A ओवर साइज ऑफ S. और साइज ऑफ A जब हमने कहा था, उस साइज को हमने डिफाइन ही सम से किया था, और सैंपल स्पेस का भी जो साइज था वो भी उसके सम से किया था. किन चीजों का सम? उन नंबर्स का सम जो हमने इन एलिमेंट्स को असाइन कर दिए थे. ठीक है, तो अगर A के अंदर, अब मैं एक A सेट बनाता हूं, उसके अंदर ये नंबर्स है, A इक्वल्स, उसमें एक नंबर है 2, एक नंबर है उसमें 5, ये 2 नंबर्स का सेट. इन नंबर्स, इसका जो साइज होगा, साइज ऑफ A, वो इन नंबर्स को असाइन हुए हुए, इन एलिमेंट्स को असाइन हुए हुए नंबर्स का सम होगा. Which means 2 को आपने क्या असाइन किया था?
बताइए जिन्होंने सवाल पूछा था, जिन्होंने सवाल पूछा था, हमने 2 को क्या असाइन किया था? जिन्होंने सवाल पूछा था वो मौजूद हैं? यस आपका सर। माइक तो नहीं म्यूट? अच्छा, तो मुझे बताएं सर 2 को मुझे हमने क्या नंबर असाइन किया था? आई डोंट नो सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नंबर्स कहाँ असाइन किए थे हमने? सर आप ही बता आपकी दीजिए। आवाज मुझे नहीं, देखें नहीं, यू हैव टू मूव अलोंग विद मी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे रुकी हुई है। आप अपना सवाल जरा दोबारा करें। आप बहुत कम इंटरेक्टिव हैं, इस तरह मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल होगा। आप अपना सवाल दोबारा करें, इशू है कहाँ? सर मुझे ये समझ ही नहीं आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो 1/2 के इक्वल किस तरह है। ओके फाइन। और उससे आगे और आपने उसके जो लिए मैं मुझसे आपसे ये, पूछा है कि साइज ए, वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आपने पूछा ही क्या है मुझसे। ओके एग्जैक्टली, मेरी सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स थे वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, राइट? ये मेरी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं। यस। और मैंने कहा था कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं इन एलिमेंट्स को कोई नंबर्स असाइन करने लगा हूं। इस 1 को मैं 1 असाइन कर देता हूं, 2 को मैं 1/2 असाइन कर देता हूं, 3 को मैं 1/4 असाइन कर देता हूं। इनके साथ कुछ नंबर्स जोड़ दिए हैं मैंने, ठीक है? ओके सर। जी। सर हम जानते हैं। जी, जस्ट कंटिन्यू। ये आपके पास ये नंबर असाइन हुए हैं। उसके बाद आप नोटिस करें कि यहां पर हमने किया क्या था। यहां पे हमने सर डिफाइन सम। किया था, और डिफाइन किया था खुद हमने साइज ऑफ सैंपल स्पेस, खुद कहा कि इन नंबर्स का जो सम होगा ना वो सैंपल स्पेस का साइज होगा। ये हमने खुद ही कह दिया था। जी। और फिर मैंने देखा कि जब उन नंबर्स को हम सम करते हैं तो वो सम इंफिनिटी नहीं आया, वो 2 आ गया। 2 आर। ओके, अगर वो सम 2 आ गया था तो फिर हमने कहा कि अगर कोई एस की बजाय हम एस का कोई सबसेट ले लें तो उसका तो सम डेफिनेटली 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूरे सेट को जो नंबर साइन किए हैं सारों का सम ही 2 आ गया, तो अगर कोई सबसेट ले लूं उसका सम तो 2 से छोटा ही होगा। यस और नो? यस। यस। हाँ, तो अब मुझे ये पता लगा कि मैं आ, इसका मतलब कि मैं अब प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकता हूँ। ये जो एंड पे हमने किया फिर बिल्कुल लोअर लेफ्ट कॉर्नर कि प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने कहा था कि किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी उसका साइज ओवर सैंपल स्पेस का साइज होगा। और साइज हमने सम से डिफाइन किया है। किसका सम? ये जो नंबर्स असाइन किए थे हमने, इनके सम्स, ठीक है? जी सर। अब जब आप कहते हैं सेट ए, अब आप ऊपर आ जाएं टॉप राइट पे। अब मैं कहता हूं मेरे पास जो सेट ए है ना उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स पड़े हैं 2 और 5। इसका भी जो सम होगा, जो साइज होगा, वो मैं सम से लेके आऊंगा। और वो सम किसका होगा? जो 2 को नंबर असाइन किया था और जो 5 को नंबर असाइन किया था। अब मुझे बताएं 2 को कौन सा नंबर असाइन किया था? 1/2। यस, तो ये हाफ का। और 5 को क्या नंबर असाइन किया होगा? 1/2। बताइए। 1/16 होगा। 1/16। 1/2।
1/16। So into ग्रेट। सो इसका आंसर ये है हाफ प्लस 1/16। ठीक है। और ये ए का साइज आ जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो वो होगा हाफ प्लस 1/16 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस का साइज क्या था, हम पहले निकाल चुके हैं, Sir 2. 2 एग्जैक्टली। तो इस तरह किसी भी सबसेट की प्रोबेबिलिटी इस तरह निकल आएगी। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपका सवाल था कि ये एक सेट 1 है, इसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकाली। ये सवाल अब मैं आपकी तरफ दोबारा फेंक देता हूं, आप बताएं ये कैसे निकली। अब ये मेरा सेट ए है, कैन यू हेल्प मी आउट नाउ। ऊपर क्या किया था, ए के एलिमेंट्स को देखा, एलिमेंट्स को ऐड किया था, उनका सम उ- किया था। उनके जो नंबर असाइन हुए थे उनको सम किया था। जी। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, अभी कितने हैं ए के एलिमेंट्स यहाँ पे, 2 नीचे and 5 नीचे। नीचे नीचे, हाँ जी, जो आपने सवाल किया था। इधर ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट को क्या नंबर असाइन किया था। 1/2 नहीं, 1 को देखें, 1 को क्या नंबर असाइन किया, लुक हियर, 1 1 1। 1 असाइन किया था। ग्रेट। तो सम ऑफ ए जो है उसमें है ही एक ही एलिमेंट है, उसको एक नंबर असाइन किया था 1, तो सम ऑफ ए इज 1। और सैंपल स्पेस को क्या क्या सम किया था, 2। तो 1/2 आंसर आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू नहीं वेरी मच। नहीं नहीं, अभी आप नहीं बची, अभी इसका आंसर दें मुझे। फिर ये इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, सर कौन से वाले की। ये सबसे नीचे, सॉरी सबसे नीचे। सर 2। यप, ये कैसे हुआ। सर वो हमने असाइन किया था ना, जैसे ऊपर था 1 को 1 और इसी तरह 2 को 1/2, तो डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज से डिवाइड 2, तो 2 Exactly. डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 × 2 4 1/4। एग्जैक्टली, यानी ये जो एलिमेंट है, ये जो इवेंट है ए, इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा था 2, और उस 2 को हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो थी हाफ। तो सम किया, सम में अब कुछ है ही नहीं, एक ही एलिमेंट था, उसको नंबर हाफ असाइन हुआ था, वो हम ले आए डिवाइड बाय 2। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, थैंक यू सर। सही, ज्योमेट्रिक सीरीज का थोड़ा शॉर्टकट बता दें। आपका सवाल बड़ा वेग है, शॉर्टकट से क्या मतलब है। ब्रीफली थोड़ा समझाने, रिपीट कर दें, थोड़ी समझ आई है पहले। ओके, ज्योमेट्रिक सीरीज इसको कहते हैं जिसमें आपके पास ना किधर गया सर एक आपका क्वेश्चन है कि ये हमने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में क्यों किया, यही नंबर क्यों साइन किए हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है, वो बाय द वे इसमें प्लस लिखना जरूरी था, वरना इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर कॉमा होता तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते, अगर मैं सम किया हुआ है तो फिर इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज अब क्या होता है, आपके पास एक कोई नंबर होता है, लेट्स कॉल इट ए, ये उसका पहला नंबर होता है, उसका जो अगला नंबर है ना, वो ए को किसी और नंबर आर से मल्टीप्लाई किया होता है, और उसका जो अगला नंबर है वो फिर से आर से दोबारा मल्टीप्लाई हुआ होता है, और फिर से आर से मल्टीप्लाई, और फिर से आर से मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं, और ये चलता रहता है, इनको सम कर देते हैं, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है। अगर तो ये आर की वैल्यू -1 और 1 से के बीच में है, तो इसका मतलब है कि ये जो आप नंबर्स ऐड करी जा रहे हैं ना बाद में, ये छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब अगर आर लेट्स से हाफ है, तो पहले आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, बाद में आपने फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में आपने फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, आप तो छोटा करी जा रहे हैं चीजों को। ठीक है, आधा करी जा रहे हैं, जिस तरह के यहां पे हुआ था हमारी सीरीज में, 1 को आधा किया, हाफ को आधा कर दिया 1/4, 1/4 को आधा कर दिया 1/8। ठीक है। तो दैट्स ए ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये छोटा से छोटा होता जा रहा है तो इसका जो सम है वो इन्फिनिटी नहीं होगा, वो कहीं कन्वर्ज करेगा,
वो जहां पे कन्वर्ज करता है उसका ये शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का जो फॉर्मूला वो है कि आप पहला नंबर लें 1 ए, हमारे केस में ए 1 था और आर हाफ था। हमारा बिगिनिंग नंबर 1 था और आप हमेशा पिछले नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई करी जा रहे थे टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो वो फॉर्मूला जो है वो ए ओवर 1 माइनस आर है, उसके सम का, वो मैंने यूज कर लिया था। एक्सक्यूज मी जी जी सर, ये हमने जैसे आपने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली, मतलब उस सबसेट की प्रोबेबिलिटी, एस के सबसेट की प्रोबेबिलिटी निकाली। जी बिल्कुल। तो सर इसका बेसिकली रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि ये जो इस तरह की स्पेस थी ना हमारे पास, किधर गया सैंपल स्पेस, ये वाली Yes, sir. सैंपल, ये सैंपल स्पेस इनफाइनाइट सैंपल्स थे इसके अंदर। चूंकि ये इनफाइनाइट सैंपल्स थे, मैं इसका साइज नहीं मालूम कर सकता था। या तो फाइनाइट होते ना, 10 एलिमेंट्स होते इसमें, मैं कहता है 10 एलिमेंट्स हैं, ओके इसका साइज है 10। इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स है, मैं इसके साइज का क्या करूं, कैसे बनाऊं इसका साइज। तो ऐसे मामलों में जो हमने आज चीज सीखी है ना, ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक था कि आपने एलिमेंट में जो सैंपल स्पेस में जो चीजें पड़ी थी, सैंपल स्पेस में एक कोई ये वाला एलिमेंट पड़ा था, एक कोई ये वाला एलिमेंट पड़ा था, एक कोई ये वाला आउटकम पड़ा था, जो भी है ऑल पॉसिबल जितने भी हैं, और ये नेवर एंडिंग थे, इन्फिनिट बहुत सारे एलिमेंट्स थे। इनमें आपने जो ट्रिक यूज किया वो ये किया, आपने इस एलिमेंट को कोई नंबर असाइन कर दिया है, नंबर 1 कह दें। आपने इस एलिमेंट को भी कोई और नंबर असाइन कर दिया है, नंबर 2। हर एलिमेंट को आपने धक्के से खुद ही कोई नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। और तो अभी भी नंबर्स ये इन्फिनिट हैं, ये नंबर्स इन्फिनिट हैं, लेकिन Yes, अगर ये नंबर्स इस तरह के हुए, अगर कि जैसे कोई ज्योमेट्रिक सीरीज थी फॉर एग्जांपल, एंड सो ऑन, जिस भी सीक्वेंस में, तो फिर इन नंबर्स का जो सम है, ये सम जो है ना, ये एक कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, के व्हाटएवर, कोई नंबर आ जाएगा, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। कब, जब ये आर की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है। इससे हुआ ये है कि हम बजाय इन नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के, इन सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को जो नंबर्स असाइन किए हैं, उनके सम को हम कह देते हैं कि जो साइज ऑफ सैंपल स्पेस था वो सम था, ठीक है। सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ दीज नंबर्स। और फिर अगर कोई सबसेट आ जाता है ए का, तो उसका साइज भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, सम ऑफ नंबर्स असाइंड टू एलिमेंट्स ऑफ ए। इसमें था सम ऑफ नंबर्स असाइंड टू एलिमेंट्स ऑफ एस, वो तो सारे ही थे। और इसमें गारंटी है, अगर तो कन्वर्ज कर रहे थे, गारंटी है कि ए के एलिमेंट्स का सम जो है वो एस के सम से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए के नंबर भी कम है, ए का साइज कम है, तो ए सबसेट है, तो इसलिए वो प्रोबेबिलिटी निकल आती है। ये ट्रिक हम शायद बाद में भी यूज करेंगे कोर्स में, ओके सर। ठीक है। यानी इस सारी तकलीफ की जरूरत ये थी कि हम फंस गए थे पुराने तरीकों से, नॉर्मल तरीकों से। यहाँ पे या तो हम कहते कि जो इन्फिनाइट स्पेसेस होती है ना, उनमें प्रोबेबिलिटी आप यूज कर ही नहीं सकते,
ठीक है, हम ये कह के घर जा सकते थे। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं, मैंने इन्फिनिटली बड़ी स्पेसेस में भी प्रोबेबिलिटी वाली मशीनरी, प्रोबेबिलिटी वाले काम मैंने करने हैं, अगर करने हैं तो फिर ये धक्के से हम इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। ओके